एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ पीके क्यू एंड ए में आपका स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट 16 का पार्ट 2। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट। और कुछ भी आपको क्वेरी हो या फिर तो आप हमें टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रिगार्डिंग एनी काइंड ऑफ क्वेरीज आप वहाँ पूछ सकते हैं एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वो है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इल नीनो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, इल नीनो के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज El Nino is a climate pattern that causes a warming of sea surface temperature in the central and eastern Indian Ocean. Is it true? No, it's not a correct statement, क्योंकि सभी को पता है इल नीनो कहाँ पे आता है, वो पैसिफिक ओशन में आता है। Okay, so first statement is incorrect. El Nino is a climate pattern that describes the unusual warmings of surface water in the eastern tropical Pacific Ocean. Okay, El Nino is the warm phase of a large phenomena called El Nino Southern Oscillations, and El Nino and La Nino are considered the ocean part of El Nino Southern Oscillation, while the Southern Oscillation is atmospheric change. Okay, so first statement is incorrect. Next is the occurrence of El Nino is associated with the reduced rainfall during the Indian monsoon. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is El Nino typically lasts 9 to 12 months only. Is it true? No, it's not in the last 9 to 12 months only. Okay, if you're talking about the El Nino and La Nino typically last 9 to 12 months but can sometimes last for years. Okay, El Nino and La Nino events occurs every 2 to 7 years on average, but they don't occur on a regular schedule. Okay, generally El Nino ज़्यादा आता है and compared to El Nino occurs frequently than La Nino. Okay, and अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के लिए कौन सा फेवरेबल होता है, जिसमें बारिश अच्छा खासा होता है, मानसून अच्छा रहता है, तो वो ला लीनो जो कि रेयर में आता है, और इल नीनो जो कि अच्छा नहीं रहता है, जिसमें इल नीनो के ड्यूरेशन में इंडिया में क्या होता है, तो इल नीनो के ड्यूरेशन में इंडिया में सूखा पड़ता है। ओके, लेट्स कम टू द अनदर क्वेश्चन विच इज, सो आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। The Earth's atmosphere is heated as it absorbs heat from the Earth's surface. Yes, it's a correct statement. Next is, advection is the process by which the Earth transmits heat to the lower layer of the atmosphere through direct contact. No, it's not advection. ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा conduction. ओके, एंड अगर हम एडवेक्शन की बात करते हैं तो एडवेक्शन क्या हो जाएगा, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड एडवेक्शन। ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड सेकंड इज इनकरेक्ट, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 is correct. Okay, let's come to the next question, which is, which of the following are the factors controlling the temperature distribution of air at any place of the Earth's surface? Okay, so first is longitude. No, it's not. Distance from the sea, latitude, presence of cold ocean, altitude, and इसमें एक और हम ऐड करते हैं, वो है local aspects. Okay, so answer for this question is only 2, 1 नहीं होगा, बाकी सारे होंगे, तो 2, 3, 4, 5 all of the above. Option number B is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is, in the context of jet streams, consider the following statements. First is, jet streams are high altitude winds found only in the stratosphere region of the atmosphere. Is it true? No, जेट स्ट्रीम स्ट्राटोस्फेयर के साथ
ये अपर ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है। ओके, अपर ट्रोपोस्फेयर में भी पाया जाता है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है दे जनरली ब्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब। यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज jet streams are strongest during the both northern and southern hemisphere in the winter. Yes, it's a correct statement. Okay, and if you're talking about the jet streams are long, narrow and high speed meanderings circumpolar winds that typically flow eastward and southeastward in the middle and upper troposphere or upper stratosphere. Okay, so answer for this question is option number C. Only 2 and 3 is the correct answer for this question. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements. Consider the following pairs in the context of rainfall distribution in India. First is average rainfall and second is reasons. Okay, if you are talking about the और यहाँ पे क्या पूछा है तो करेक्टली मैच पूछा है. ओके, सो फर्स्ट इज ब्रह्मपुत्र वैली. यहाँ पे कैसा ये होता है तो हैवी रेनफॉल एक्सीड 400 सेंटीमीटर. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पे मैक्सिमम 200 सेंटीमीटर तक जाता है. ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज moderate rainfall between 100 to 200 in the northern Ganga plain. Yes, it's a correct statement. Next is lower rainfall between 50 to 100 centimeter in the western UP. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number B. Only 2 is correct. Okay, and if you are talking about the average rainfall of India, average rainfall बात करते हैं इंडिया का तो वो कितना है 125 सेंटीमीटर. ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is consider the following pairs. Consider the following pairs in the context of local winds. Okay, winds की अगर हम बात करते हैं लोकल winds की और की फीचर्स के उसके तो क्या क्या है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज बोरा. बोरा क्या कोल्ड एंड मोस्ट है? नो, बोरा इज अ कोल्ड एंड ये क्या हो जाएगा ड्राई. ओके, सो इसका फीचर हो जाएगा कोल्ड एंड ड्राई फीचर्स बोरा का. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज सिरोको हॉट एंड ड्राई. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज हरमटन. हरमटन की अगर हम बात करते हैं तो वो कोल्ड एंड ड्राई है. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ये हॉट एंड ड्राई है. Okay, so statement third is also incorrect. So answer for this question is option number A. Only one is correct. Okay, and अगर हम other local winds की बात करते हैं तो वो हम देखते हैं एक चार्ट के थ्रू. ओके, सो चलिए देखते हैं. अगर हम अदर लोकल विंड्स की बात करते हैं फॉर एग्जांपल लू. ओके, अगर हम लू की बात करते हैं ठीक है तो वो कहाँ कहाँ पे हो जाएगा. ये नॉर्थ इंडिया में आता है एंड पाकिस्तान. एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा होता है हॉट ड्राई स्ट्रॉन्ग एंड ब्लो फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट. ओके, और इसका टेम्परेचर मैक्सिमम कितना 45 to 50 डिग्री सेल्सियस होता है जिसकी वजह से विजिबिलिटी रिड्यूस्ड हो जाता है. ओके, एंड हीट वेव्स भी आते हैं. नेक्स्ट इज फर्न. फर्न की लीवर्ड साइड ऑफ द एल्प्स. ओके, और ये ड्राई वार्म एंड स्ट्रॉन्ग इसका कैरेक्टरिस्टिक है. और ये स्नो मेल्ट अर्ली प्रेशर ग्रोथ है हाई रिस्क फॉर फायर. ओके, ये हो जाएगा. एंड नेक्स्ट वन इज चिनोक. ओके, इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द चिनोक ये स्लोप ऑफ रॉकीज में आता है. और आप हमें ये बताइए कमेंट में कि रॉकीज साउथ अमेरिका में आता है. साउथ अमेरिका में रॉकीज साउथ अमेरिका में आता है या फिर नॉर्थ अमेरिका में. ओके, साउथ या नॉर्थ अमेरिका में ये आप हमें कमेंट में बताइए. नेक्स्ट इज इसको स्नो ईटर भी बोला जाता है. ओके, और ये रैपिड स्नो मेल्ट करता है और इंक्रीज होता है इसके वजह से टेम्परेचर. ओके, ये टेम्परेचर इंक्रीज होता है इसलिए रैपिड स्नो मेल्ट भी होता है. ओके, नेक्स्ट वन इज सिरोको. सिरोको की बात करते हैं ये सहारा डेजर्ट में मिलता है. हॉट ड्राई एंड डस्टी होता है एंड ये ब्रिंग्स हॉट dry conditions sometimes cooled by the Mediterranean Sea. Okay, not the next one is Herman. ये Herman नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका हॉट ड्राई डस्टी एंड स्ट्रॉन्ग होता है एंड रिलीफ फ्रॉम द मॉइस्ट हीट हेल्थ बेनिफिट्स ड्राई क्लाइमेट. ओके, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे सारे
हॉट लोकल विंड्स। एंड अगर हम बात करते हैं कोल्ड लोकल विंड्स के बारे में तो उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, उसमें आ जाएगा मिस्ट्रल एंड बोरा। मिस्ट्रल कहाँ पे, एल्प्स जो कि फ्रांस में, फ्रांस तरफ है, जिसको यूरोपियन ये भी बोलते हैं। एंड ये हो जाता है कोल्ड ड्राई हाई वेलोसिटी एंड लो टेम्परेचर फ्रीजिंग कंडीशन भी यहाँ पे आ जाता है। अनदर वन इज बोरा, ये एड्रियाटिक सी रीजन में पाया जाता है, कोल्ड ड्राई हाई स्पीड एंड लोअर टेम्परेचर स्ट्रॉन्ग विंड्स। ओके, सो ये रहे इसके इंपॉर्टेंट थिंग्स। लेट्स कम टू द अनदर को, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, यहाँ क्वेश्चन है क्या, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो उसमें है, और यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा है, तो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, और इसमें की फीचर्स दिया है क्या क्या उसमें होता है। ओके, सो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, ये कंटेन करता है 75% ऑफ द एटमॉस्फेरिक मास। इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next is stratosphere. If we're talking about the stratosphere, ये ideal for the arrival of the air travels due to the stable condition. Yes, it's a correct statement. Next is the thermosphere. Most meteors burn up here due to the thin air. Is it true? No, it's not a correct statement. Meteors कहाँ पे burn होते हैं, तो वो mesosphere में. Okay, so third statement is incorrect. So answer for this question is option number बी, ओनली 2 इज़ करेक्ट। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं इसके लेयर्स के बारे, एटमॉस्फेयर के लेयर्स के बारे में, तो वो कौन कौन सा होता है, तो उसके लिए एक निमोनिक है जिसको आप चाहे तो याद रख सकते हैं, विच इज़ ईट मोस्ट। ओके, ईट मोस्ट। ओके, सो सबसे फर्स्ट लेयर कौन सा आता है, ट्रोपोस्फेयर। ओके, ट्रोपोस्फेयर, देन आता है स्ट्राटोस्फेयर, देन आता है हमारा मीसोस्फेयर, एंड देन आता है थर्मोस्फेयर, एंड नेक्स्ट वन इज अनदर वन इज एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर, और ये क्या हो जाएगा, ओ, तो ये ओजोन है जो कि स्ट्राटोस्फेयर के अंदर आता है। ओके, ओजोन लेयर। ओके, एंड इसके बारे में और हम डिटेल में देखते हैं, विच इज, अगर हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की। ओके, ट्रोपोस्फेयर कितना से कितना, 0 से 13। ओके, 13 किलोमीटर तक का होता है, बट ये डिफर करता है इक्वेटर और पोल्स में। ओके, थिकर होता है एट इक्वेटर एंड थिनर होता है एट पोल्स। ओके, नेक्स्ट वन इज, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो 75% ऑफ एटमॉस्फेरिक मास इज लाइक रिस्पॉन्सिबल फॉर all weather phenomena like clouds, precipitation, winds all occur here. Okay, कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। एंड अगर हम बात करते हैं स्ट्राटोस्फेयर के, जो कि जिसका रेंज होता है हाइट रेंज विच इज़ 13 to 50 किलोमीटर, विच इज़ कंटेन ओजोन लेयर्स देयर एंड प्रोटेक्ट, ओजोन लेयर क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द यूवी रेडिएशन। ओके, और ये आइडियल फॉर द एयर ट्रैवल ड्यू टू स्टेबल कंडीशन एंड साइरस क्लाउड में बी प्रेजेंट हेयर। ओके, नेक्स्ट वन इज मिसोस्फेयर, जिसको 50 to 85 किलोमीटर होता है, एंड यहाँ पे सारे मिट्योर्स बर्न अप हो जाते हैं, एंड पोलार मेटोस्फेरिक नॉक्टिलुसेंट क्लाउड फॉर्म ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड। ओके, यहाँ नॉक्टिलुसेंट क्लाउड फॉर्म होता है क्योंकि एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर, जिसमें कि 80 to 600 की अगर आप बात करते हैं तो उसमें आ जाएगा इंटरनेशनल स्पेस एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स लाइक कर्मन लाइन। 100 किलोमीटर के बाद जो आता है उसको कर्मन लाइन बोलते हैं, और उसके बाद स्पेस बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जैसे आइनोस्फेयर, जो कि 80 to 400 इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट होने से एक्सोस्फेयर, जिसमें 400 प्लस के होते हैं, ये वेरी थिन होता है, स्पेस एटमॉस्फेयर ट्रांजिशन जोन ऑफ द आउटर स्पेस का एरिया। ओके, सो लेट्स कम टू दिस, इसका अगर हम मैप के थ्रू देखना चाहें, सो दिस वन इज द लेयर, देख सकते हैं आप सारे वेदर फेनोना यहाँ पे हो रहे हैं, कहाँ पे, तो ट्रोपोस्फेयर में। ओके, देन ये आ गया हमारा ओजोन लेयर, जो कि बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्राटोस्फेयर है, बट ये स्पेशली स्ट्राटोस्फेयर में ही आता है, कौन सा, ओजोन लेयर। यहाँ पे एरोप्लेन भी इसी में चलते हैं क्योंकि ये स्टेबल कंडीशन होता है।
ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हो जाता है मीसोस्फेयर, जिसमें मीटियोर सारे बर्न होते हैं। देन थर्मोस्फेयर में सैटेलाइट ये सब, और थर्मोस्फेयर में से ही हमारा कर्मन लाइन स्टार्ट होता है, स्टार्ट ऑफ द आउटर स्पेस, जिसको यहाँ से 100 किलोमीटर के बाद जो आता है उसमें कर्मन लाइन डिवाइड करता है किसको, आउटर स्पेस को। ओके, एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारा एक्सोस्फेयर। ओके, जिसमें स्पेसशिप ट्रैवल करते हैं। ओके, ये रहा लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। इसका निमोनिक क्या था, ईट मोस्ट। ओके, ईट मोस्ट आपको रिवर्स करके इसमें ये देखना है कि कौन सा लेयर, क्योंकि लेयर भी कभी कभी अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है। ओके, सो ये रहा, लेट्स कम टू सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर विच इज बी ऑप्शन। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज in the context of land and sea breeze, consider the following statement. First is, land breeze originate from the high pressure areas over the land and blow towards the sea. Is it true? No, it's not a correct statement. Let me tell you why. Because land breeze originates from high pressure areas sea over the sea and blow towards the land. ओके, सो ये हो जाएगा, यहाँ पे रिवर्स कर दिया है स्टेटमेंट, पहले सी लैंड कर दिया, लैंड से सी कह दिया, बट ऐसा नहीं होगा, सी टू लैंड होगा। ओके, सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करते हैं लैंड ब्रीज आर स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग द समर नाइट्स देन द विंटर नाइट, इज इट ट्रू? नो, इट्स ऑल्सो इनकरेक्ट, बिकॉज लैंड ब्रीज की अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्गर कब होते हैं, लैंड ब्रीज आर स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग द विंटर नाइट्स। ओके, विंटर नाइट्स एंड लैंड ब्रीज आर स्ट्रॉन्गर ड्यूरिंग विंटर नाइट्स रादर देन समर नाइट्स। ओके, सो यहाँ पे भी स्टेटमेंट रिवर्स किया है, सो स्टेटमेंट दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन इज, सी ब्रीज आर स्ट्रॉन्गेस्ट during the monsoon season in the tropical regions. Is it true? No, it's not a correct statement. So answer for this question is none of the above, which is option number D is the correct answer for this question. Okay, and if you are talking about the sea breeze activity exists more or less throughout the year, through it is the most prominent in the winter rather than weak during the summer season. ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा prominent होता है, तो विंटर में, और समर में ये वीक हो जाता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और लैंड ब्रिज और सी ब्रिज अकर कैसे होता है, तो वो हम देखते हैं। ये हमारा हो जाएगा सी ब्रिज, और सी ब्रिज कब होता है, तो ये डे टाइम में होता है। डे में क्या होता है कि जब वो लैंड जो है वो जल्दी हीट अप भी हो जाता है एंड जल्दी इसका हीट रिड्यूस भी हो जाता है लैंड का, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं सी की, ये हीट भी लेट से होता है एंड ये कूल भी लेट से होता है। तो इधर दोनों के कंपेयर में किधर हो जाएगा टेम्परेचर ज़्यादा, तो इधर हो जाएगा किधर, लैंड के तरफ। तो और टेम्परेचर ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ओके, सो तो इसमें विंड का जो डायरेक्शन है वो किधर जाएगा, हाई प्रेशर से। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, यहाँ का टेम्परेचर हाई हो गया। ओके, किसके, क्योंकि यहाँ पे सन का रेज पड़ रहा है तो जल्दी हीटअप हो जाता है लैंड इन कंपेयर टू सी। ओके, तो टेम्परेचर अगर हाई है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ये लो होगा। एंड यहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो ऑलवेज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है विंड, उसको फिलअप करने के लिए। ओके, तो ये जो डायरेक्शन हो जाएगा इधर ऐसे मूव करेगा। ओके, सो ये हो गया हमारा सी ब्रिज, कहाँ से, सी से लैंड की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड सी ब्रिज, और ये डे का फेनोमेना है। ओके, एंड अगर हम बात करते हैं अनदर वन विच इज दिस इज लैंड ब्रिज। लैंड ब्रिज की अगर हम बात करते हैं, इसमें भी कंडीशंस अलग होते हैं, और ये नाइट के टाइम में होता है। क्यों बताते हैं, बिकॉज दिस इज द लैंड ब्रिज
अगर लैंड जल्दी ठंडा हुआ है तो वो गर्म भी जल्दी गर्म जल्दी हुआ है तो ठंडा भी जल्दी होगा। नाइट के टाइम में सनलाइट नहीं होता है, ओके, तो वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, ओके। और सी जितना ही टाइम लगता है गर्म होने में उतना ही टाइम लगता है ठंडा होने में, मतलब कि कंपेयर टू लैंड ठंडा होने में भी वो ज़्यादा टाइम लगता है, ओके। तो यहाँ पे अब हो गया लो टेम्परेचर, ओके, नाइट में, बट यहाँ हो गया कितना हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। और यहाँ पे टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर हाई लो हो जाएगा, ओके। तो फिर से विंड का डायरेक्शन का चेंज होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर के और जाएगा, ओके। तो इसका डायरेक्शन चेंज होगा, फिर इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दिस वन, लैंड से सी की ओर, ओके। तो इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रिज, ओके, जो कि लैंड से सी की ओर जाता है, ओके। तो ये हमारा नाइट का फेनोमेना हो गया, ओके। सो ये रहा इसका डिटेल। So let's come to the another question, which is so answer for this question is option number D, which is none of the above is correct, okay. Let's come to the next question, which is with reference to the to water vapor, consider the following statements. First is water vapors absorb both long wave terrestrial radiation and short wave solar radiation. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is water vapor increases from the equator towards the pole. Is it true? No, ये इंक्रीज नहीं करता है, ये डिक्रीज करता है। वाटर वेपर डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ओके। सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज वाटर वेपर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट फॉलोइंग allowing the earth neither to become too colder or nor too hot, okay. So statement third is incorrect, sorry, correct. So answer for this question is option number B, only 2 is correct, okay. And let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the cold front, okay. We're talking about cold front. First is a statement, it occurs when cold air mass moves into a region occupied by the warmer air masses, and yes, it's a correct statement. Next, it leads to the development of cumulus or cumulonimbus clouds and can trigger thunderstorm. Yes, it's also correct. So answer for this question is option number C, only sorry, both 1 and 2 are correct, okay. Let's come to the next question, which is consider the following statements. First is regarding the orographic rainfall, okay. First statement is orographic rainfalls occur when cold and dry air moves over a mountain range. Is it true? No, it's not a correct statement, because the orographic rainfall occur when the moist air is forced to rise over the mountain ranges, okay, causing the air to the cool and condense into the precipitation, okay. And so statements first is incorrect. Next is the orographic rainfall is responsible for the heavy precipitation on the leeward side of the mountain. No, it's not a correct statement, because the heavy precipitation happened in the, कहाँ पे होता है ये, तो विंडवर्ड साइड होता है, ओके। विंडवर्ड साइड होता है हैवी प्रेसिपिटेशन। एंड अगर हम लीवर्ड साइड की बात करते हैं तो वहाँ पे वो रेन शैडो जोन हो जाता है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ओके। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड और यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ना के बराबर होती है लीवर्ड साइड में, ओके। सो ऑप्शन बी इज सॉरी, स्टेटमेंट 2 इज द इनकरेक्ट। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेटमेंट थर्ड, विच इज statement third, Annamalai and Nilgiri ranges provide favorable condition for the orographic rainfall. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number A, only 1 is correct, okay. Let's come to the next question, which is in the context of trade winds, consider the following statements. First is इसमें क्या पूछा, करेक्ट, द ट्रेड विंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टूवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज trade winds blow from the southeast direction in the northern hemisphere. Is it true? No, it's not a correct statement, because northern hemisphere में होता है नॉर्थ ईस्ट
डायरेक्शन, ओके, ना कि साउथ ईस्ट। सो और अगर साउथ ईस्ट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे होता है, सदर्न हेमिस्फेयर में, ओके। सो स्टेटमेंट सेकेंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव्स अबव इज द करेक्ट, ओके। Sorry, third state, trade winds are stronger over land and compared to the ocean. Is it true? No, it's not a correct statement because trade winds stronger होता है कहाँ पे, ओशन में, एंड ओशन में स्ट्रोंगर होता है, एंड अगर हम बात करते हैं लैंड की तो वहाँ पे वीक होता है, ओके, इन कंपेयर टू, ओके। सो स्टेटमेंट थर्ड इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन इज करेक्ट, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट इज, और इसमें क्या पूछा है, तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द प्रेशर ग्रेडियंट इज स्ट्रोंगर वेयर द आइसोबार्स आर क्लोज टू ईच अदर। इज इट ट्रू? Yes, it's a correct statement. Next is the Coriolis force. Force is inversely proportional to the angle of latitude. No, it's not a inversely proportional. It's a directly proportional. Okay. So, first second statement is incorrect. Next is और अगर हम Coriolis force की बात करते हैं तो वो प्रेजेंट होता मैक्सिमम होता है पोल पे, ओके। बट अगर हम बात करते हैं इक्वेटर के तो इक्वेटर में absent होता है, ओके। सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज एट द इक्वेटर द विंड ब्लोज परपेंडिकुलर टू द आइसोबार। इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 1 and 3 are the correct answer, okay. Let's come to the next question which is in the context of isotherms consider the following statement, okay। और इसमें क्या पूछा है, तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज the isotherms are lines drawn on a map connecting places with the same temperature. Is it true? Yes. Isotherm same temperature में ये करता है, and if you're talking about the isotherm shift southward during the summer in the northern hemisphere, is it true? No, it's not a correct statement because during the summer isotherms bend towards the pole over land masses, and अगर हम लैंड मासेस की बात करते हैं तो वो पोल की तरफ जाते हैं एंड towards the equator while crossing oceans. So this is because the land masses in the northern hemisphere changes temperature more quickly than the water, causing in the isotherms to bend towards the pole, okay. So statement second is incorrect. Next is in the southern hemisphere these isotherms are generally more parallel to latitude than the northern hemisphere. Is it true? Yes, it's a correct statement क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली ओशंस है, ओके, एंड नदर्न हेमिस्फेयर में मोस्टली क्या है, तो लैंड है, ओके। इसकी वजह से डिफरेंस आता है, ओके। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द टर्म डोलड्रम, ओके। डोलड्रम क्या है? It here's geography roughly corresponds to which of the following regions? First is high pressure zone in the mid latitude. No, it's not a correct statement. Next is low pressure region near the equator with calm winds. Yes, it's a correct statement, okay. And अगर हम डोलड्रम की बात करते हैं तो डोलड्रम को हम ITCZ भी बोलते हैं, जिसको इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी बोला जाता है, ओके। और ये कहाँ से होता है, इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर में 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ तक होता है, सॉरी हाँ साउथ तक होता है, ओके, इक्वेटर से। सो ज़्यादा ये नहीं होता है और ये काम एरिया होता है, ओके, जिसमें विंड फ्लो ज़्यादा नहीं करता, ओके। सो स्टेटमेंट बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द क्लाइमेट अकर्स along the west coast of continents in the summer subtropical latitudes between 30 to 40 degree latitude. Example, central California, central Chile, along coast with the southern and southwestern Australia. This area come under the influence of subtropical high in summer
and westerly wind in winters. Hence, climate is characterized by hot, dry summer and mild, rainy winters. Which of the best describe in the passage of the given? Okay, so ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा मेडिटेरेनियन climate. Okay, Mediterranean type of climate. Okay, let's come to the next question, which is which of the following conditions are essential for the full development of karst topography? Okay, सो इसमें क्या पूछा है? तो करेक्ट आंसर पूछा है. सो कास्ट टोपोग्राफी की अगर हम बात करते हैं तो रीजन कौन सा है? इसमें आ जाएगा फर्स्ट स्टेटमेंट इज हाईली जॉइंटेड एंड थिनली बेडेड रॉक्स. इज इट ट्रू? यस, इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज वेरी लो रेनफॉल. नो. रेनफॉल कितना हो जाएगा? तो रेनफॉल मॉडरेट टू हैवी रेनफॉल होना चाहिए. ओके, heavy rainfall. So statement second is incorrect. Next is groundwater circulation, correct. And another one is dense and soluble limestone near the surface. Yes, it's a correct statement. So answer is option number B. 1, 3 and 4 is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is consider the following countries. Which countries given the above share a border with the Mediterranean Sea? Okay, Jordan है. जॉर्डन मेडिटेरियन सी के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है और ये अभी न्यूज़ में भी है बिकॉज ये रहा. फॉर एग्जांपल दिस इज़ द इज़राइल एंड इधर हो गया इजिप्ट. ओके, तो जॉर्डन यहाँ पे आता है. ओके, सो ये मेडिटेरियन सी के साथ ये नहीं करता है बॉर्डर शेयर. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट. सो अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं तो इसमें सी एंड डी नहीं होगा. एंड अनदर वन इज मोरक्को, ट्यूनिशिया, अल्जीरिया. ये सारे हैं बॉर्डर कंट्रीज मेडिटेरेनियन सी के. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. 2, 3 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, एंड अगर हम मैप में देखते हैं मेडिटेरेनियन सी को तो वो है कौन कौन सा था? तो उसमें हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा ये रहा मेडिटेरेनियन सी हमारा, और इसमें हो जाएगा मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, यहाँ पे इज़राइल भी हो जाएगा, एंड टर्की, ग्रीस, इटली एंड फ्रांस. और आप हमें कमेंट में ये बताइए कि ये जो मेडिटेरेनियन सी और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है उस स्ट्रेट का क्या नाम है. ओके, ये हमें कमेंट में बताइए. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ which of with reference to the river meanders consider the following statements. First is meanders are the result of erosion and deposition both. Yes, it's a correct statement. Next is अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट meanders are developed through the lateral erosion only. No, it's lateral के साथ ये vertical erosion भी करता है. ओके, सो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट इज mature streams are more capable of forming meanders. Yes, it's a correct statement. Okay, so answer for this question is option number B is the correct answer for this question. Okay, और अगर हम meandering की बात करते हैं, रिवर जब स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो meandering ज़्यादा नहीं करता है. ओके, वो सीधे बहता है. बट वो जैसे जैसे ये प्लेन एरिया में आता है तो वो मियांडरिंग उसका बढ़ जाता है. फॉर एग्जांपल रिवर अभी ओरिजिनेट हुआ है तो वो ऐसे इरोजन करेगा, देन उसके बाद ऐसे फिर ऐसे मियांडरिंग करते जाएगा. ओके, ये हो जाएगा इनिशियल स्टेज, फिर मैच्योर, फिर ये हो जाएगा हमारा ये लास्ट वाला स्टेज जिसमें गंगा प्लेन है. ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is which of the following type of soil erosion occur through the action of water? So first is scalding. Is it true? Yes, scalding, leaching, gully erosion, stream bank erosion, all of the above. And if we are talking about the option state abrasion, it's not, because ये किसकी वजह होता है? तो ग्लेशियर के द्वारा होता है. ओके, सो स्टेटमेंट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 1, 2, 3 and 4 are the correct answer for this question. And if we are talking about the first one, which is if we are talking about the स्ट्रीम बैंक इरोजन, अगर हम स्ट्रीम बैंक इरोजन के बारे में बात करते हैं
is nothing but washing up away from the banks of the stream or rivers. Okay, and if you are talking about the gully erosion क्या हो जाएगा? तो gully erosions occur due to the runoff of surface water causing the removal of soil with drainage lines. Okay, and if we are talking about the another one which is rolling erosion. Okay, इसमें और भी एक ऐड हो जाएगा क्या? रेल इरोजन. ओके, रेल इरोजन की अगर हम बात करते हैं तो वो form of water erosion that numerous narrow and more not so straight channel called streamlets. Okay, इसको हेड कट्स भी बोलते हैं. एंड लीचिंग इज द लॉस ऑफ सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड कोलाइड्स फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द विंड इरोजन, इसमें 3 टाइप होते हैं. कौन कौन से? सुपर सरफेस क्रीप, साल्टेशन एंड सस्पेंशन. ओके, so answer is option number B. Let's come to the next question, which is the terraneous deposits are those which are found on the continental slopes are mainly consist of the rock material derived because of the water and tear. Which of the following paragraph which of the following are example of terraneous deposit? So first is silt, clay, red mud, and siliceous ozus. So which one is correct in this? Which is for example silt, yes it's a correct. Clay, रेड मड, ये हो जाएंगे सारे. बट इफ़ आर टॉकिंग अबाउट द रेड क्ले, ये नहीं होगा बिकॉज रेड क्ले क्या हो जाएगा? तो ए बायोटिक हो जाएगा, ए बायोटिक डिपॉजिट हो जाएगा. ओके ओके, सो स्टेटमेंट थर्ड इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 5 इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ये बायोटिक है. ओके, ये बायोटिक डिपॉजिट हो जाएगा, बायोटिक डिपॉजिट हो जाएगा. सो स्टेटमेंट 5th इज ऑल्सो इनकरेक्ट. एंड अगर हम ए बायोटिक की बात करते हैं तो इसमें और एक आ जाएगा, वो हो जाएगा मिट्योरिक डस्ट. ओके, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4 is the correct answer for this question, which is option number C. Okay, let's come to the next question, which is which of the following suitable for description describes the northeast India as per the Copenhagen's classification. Okay, so first is humid subtropical climate with dry winter. Is it true? यस इट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यही डिस्क्राइब करता है नॉर्थ ईस्ट के बारे में. ओके, जो कि CWG से ये डिनोट किया जाता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बंगाल एंड गंगा प्लेन का भी यही डिस्क्रिप्शन होता है. कौन सा? नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड बंगाल एंड गंगा प्लेन के बारे में भी. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज these forests occur in the areas that receive low rainfall. These consist of the varieties of grasses, shrubs, and in this forest plants remains leafless for the most part of the year and give an expression to shrubs vegetation. Important species found are babul, bear, and wild date palm, khair, neem, khijri, palas, etc. Which of the following type of forest is being described? So, is it a dry deciduous forest? No. Montane forest? No. It's a tropical thorn forest. Okay, so answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Okay, and if we are talking about the moist decidus, okay, moist decide में क्या है? ये more pronounced in the region that record rainfall between कितना 100 to 200. Okay, these found the northeast state like foothills of Himalaya, eastern slope and the western ghat of Odisha, जिसमें टीक, साल, सीसम, हुरा, महुआ, आमला, सीमूल एंड कुसुम एंड सैंडलवुड पाया जाता है. Okay,
Answer is option number C is the correct answer for this question. Let's come to the next question, which is with reference to the local world distribution of the rainfalls. Consider the following statement. First is the rainfall usually decreases as one moves from the equator towards the pole. Is it true? Yes, it's a correct statement. Next is the region between latitude of 35 degree and 45 degree north south receive heavy rainfall on the western coast compared to the eastern coast. Is it true? No, it's not a correct statement because heavy rainfall in the eastern coast and in compared to the western coast. Okay, so statement second is incorrect. Next is in the western part of the cool temperate region, rainfall is distributed evenly throughout the year. Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number C. Only 1 and 3 is the correct. Okay, let's come to the next question, which is with reference to the insolation received on the earth's surface, which of the following statement is correct? Okay, first is the earth's surface receive most of its energy in the longer wavelengths. No, it's not a correct statement. Insolation received at the surface is generally higher in the ocean and the ऐसा भी कुछ नहीं होता है. Next is tropics receive more insolation than the equator. Yes, it's a correct statement. Answer for this question is option number C is the correct answer for this question. Okay, and another question, next question is consider the following statements regarding the which of the following states do tropical thorn forest occur. Okay, सो आंसर इसका क्या होगा. ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट कहाँ पे? मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका. ऑल ऑफ द above आर करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. All of the above are correct. Okay, let's come to the next question, which is consider the following statements regarding the geotrophic current, which is the first statement. They are ocean current formed when the pressure gradient force is more than the Coriolis force. Is it true? No, it's not a correct statement because यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट और Coriolis फोर्स दोनों एक दूसरे को if we're talking rotation of the earth result the forces being felt by the water moving around the high to low and known as जिसे को Coriolis force बोलते हैं. Coriolis force acts at the right angle to the flow, and when it balances the pressure gradient force, the resulting flow is known as geostrophic. Hence, a geostrophic current is an oceanic current in which pressure gradient force is balanced the ये बैलेंस करता है balanced the Coriolis force effect. Okay, so statement first is incorrect. Next is the direction of the geostrophic flow will be parallel to an isobar. Is it true? Yes, it's a correct statement. So answer for this question is option number B. Only 2 is the correct. Okay, let's come to the next question, which is which among the following countries are landlocked? Okay, so first is इसमें क्या है? ईरान, sorry, Uzbekistan. Yes, it's a landlocked countries. Now next is Iran. No, it's not a landlocked country. And if you're talking about Armenia, yes, it's a Afghanistan भी है. But if you're talking about the Azerbaijan, ये भी landlocked country नहीं है. Okay, so आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगर हम 2 को एलिमिनेट करते हैं, दिस वन इज एलिमिनेटेड एंड दिस वन, एंड इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट दी 1 तो होगा, तो इसमें नहीं है तो नहीं होगा. तो आंसर इज 1, 3, 4 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर. बट ये आंसर सही नहीं होगा. 1, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज अजरबैजान लैंडलॉक्ड कंट्री नहीं है और वो कैस्पियन सी के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है. ओके, सो यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ा रॉन्ग है तो आप उसको देख लीजिएगा. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. ओके, नेक्स्ट हम कल करते हैं इसका फाइनल पार्ट विच इज़ 50 क्वेश्चन का हो जाएगा अप्रोक्सीमेट, या 53 तक हुआ है तो देन बाकी जो बचा है वो नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा. सो एंड वो आज ही रात में हम कर देंगे 16 जो टेस्ट है उसको कंप्लीट. सो थैंक यू सो मच गाइस. इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल,
अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो वो भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच।